Yeah, my greetings, Vaheguru, to everyone. So it was raining just now, quite heavy, and suddenly it has stopped. So I thought I come out, and there is no power. So I'm sitting out on a chair and on recording my episode third. Now the issue is why I'm facing these problems are initial hiccups. That Facebook has stopped me going live for 10 days, as they say. So 3 days have passed already. So it is, so when I put up the button live, so it is 7 more days I have to wait. So till I think I get the permission to go live, I cannot speak at a stretch on my own camera, and memory issues come, then uploading on YouTube comes. So I'll do it in bits and pieces. So what we do is we keep it pending, that episode 2, part 1 I have done yesterday, where I try to explain, because why I chose such a, people are not liking it. These people are not liking my idea. And why do I call the idiots of India? But as I said in my very first episode, that not only India, the whole world is idiot. I mean, I don't know. Maybe I've come from some other planet. I fail to understand. I'm finding it difficult to adjust in this world. That why in the first 10 minutes, first episode I said, why world is idiot? Simple reason is that out of millions and billions and trillions of stars and planet systems, this is the place where we have got life. But we are not valuing it. We are not valuing it. The world is not valuing it. So we are the biggest enemy. Human beings are the biggest enemy of this earth. We are hell-bent on destroying it. But as I said, let me focus on India. Let's start with India. With India also, I started on my episode 2, first 10 minutes. Okay, how can a small company, I was in England, when I used to, England is basically not one country, as I said yesterday. It's a combination of five countries, five. You see, on the top is Scotland, which was, they have been at bitter fight. Then on the left side is Wales, England and Wales. Then where I was staying, Essex, 90 miles southeast of London. That's England, that's proper England. They are the small area, very small area. They colonize the whole world because world was made of bigger idiots. So there is something unique about them. But let me, today what I'm going to do, so spontaneously, I speak impromptu, without any preparation. So, I don't know, it's such a huge thing. So part 2 and 3 I will deal later on. That this Kali Mirch black pepper kharidne wali company, they are able to colonize India step by step, slice by slice. And they ruled us for over 200 years, 250 years roughly. Why? Why are we so, I can't understand. We were still in crores. They were in few hundred, few thousands. But with their white skin and good speaking and with their ability, they used to, distribute riyasat and pata nahi kya system tha. And when they gave us freedom, and they gave it out of default, they never wanted to give us freedom. Let me tell you now, the original date of freedom was in June 48. But then Churchill's next prime minister, Churchill was gone. He sent that Mountbatten. Mountbatten had retired by that time. So Mountbatten, when he came, he says, ki wahan dange ho gaye, they have started killing each other, so we have to get out of it. So they wanted to get out. That's why they made it fast. And now when Mountbatten comes here, he's upset. And his wife Edwina, they were in this present Rashtrapati Bhavan, the bigger, one of the largest palaces in the world, my God. और अभी भी हम उसी को यूज कर रहे हैं. Shameless. अच्छा, let's proceed. So आज मैं क्या करूँगा? आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा. I will try to. I'll speak. I will not record it twice. I'll try to speak in English and Hindi because I got some Israeli lady, the Naomi, my friend. She said that English part I understood, but not the Hindi part.
So then I will try to do it for both together. So English part is, I will frog jump now. I will tell you step by step how English, this East India paper selling company, काली मिर्च बेचने वाली कंपनी ने कितनी चालाकी से हमारे को टुकड़ों में कब्जा किया, एंड सब हमारे इंग्लैंड के आगे पीछे भाग रहे थे. आज भी वही हालत है, आज भी वही हालत है. Churchill had warned that these people will not last for 100 years. The people who will come in Indian system will kill each other, will destroy each other. And he's proving to be right. Look at the way what's going on last. Look at last 3 days में, हाथरस में, oh God. This Baba has said, क्या बताऊं मैं? I feel depressed. But now I will tell you the silver side of it. So every dark cloud has a silver lining. Silver side is that whatever England did to consolidate their, England means that company, that bloody Kali Mirch wali company, East India company. I mean, I want to abuse them. Whatever they did actually benefited India. Because there was no India. There were 550, 600 kings. मैं यहाँ पे देखता हूँ. I told you yesterday. Where I'm saying in Bharatpur, he's a separate king. उसका महल देख के आया हूँ. And they're so clever. Husband is in Congress party, wife is in BJP. And Congress ने खड़ा किया, and I'm so happy. I was with Jatav family. Jatavs को ये चमार के जो भी कहते हैं, I feel very bad. So Sanjana Jatav has won, so I'm very happy about it. Very happy. Extremely happy. बट इस साइड जाता हूँ 50 किलोमीटर इस तरफ है भरतपुर, राइट, एंड लेफ्ट साइड पे 50-55 किलोमीटर अलवर है. तो अलवर का अपना राजा है. अब बेनिफिट क्या हुआ कि वॉट एवर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर ऑन दिस व्हेन क्वीन टुक ओवर, द क्राउन टुक ओवर, हु वाज दैट किंग, जॉर्ज वॉट एवर हिज नेम वाज, व्हेन दे टुक ओवर, so India was, law was non-existent. 1857, that revolt takes place out of rumors. And they were all employees of East India Company. And all these patriotism, it's all bogus. We wanted to somehow, please British people. And they were, हम तो idiots थे. बड़ी easily उन्होंने हमें crush कर दिया. And then they wanted to make India into something, manageable, because now the government was there. Now, if you see everything that originates in India today as a country happened by one under-secretary. It was not passed by House of Commons in England. No. There is no law. There is no written constitution in England. One under-secretary ne, whatever he did, he sent, and that law was made. So this is how Indian Penal Code came into Pakistan also same, Pakistan Penal Code. So Indian Penal Code now has been changed into from 1st July, just 5 days before. So now they have made some, they say drastic, ornamental, this changes, that changes. Purpose एक ही है, ये सारी कानून को बदलने का. चीजें वही की वही रहेंगी, वही सिस्टम है. Purpose एक ही है, to keep one man in power. I call him as a great Qawwali singer, main Qawwali singer only. And rest all in the cabinet, they are all clapping, पीछे वो कवाल के पीछे तालियां बजाते हैं ना, तालियां बजाते हैं पीछे. वो अशोक वानखेड़े बहुत अच्छा ढंग से इनको करता है. I love अशोक वानखेड़े. He speaks very well. So what I want to tell you is that within few years, they made so many laws in India. So that became the start of India as a country. Then they brought railways, that again brought India as a country. Then they brought their own systems, manners, etiquette, parliamentary democracy. No, real parliamentary democracy has come from England. वहाँ पार्लियामेंट और किंग के बीच में 300 साल लड़ाई चली है. I read British history. It starts from 1485, Tudor period, Henry VII. And let me tell you, you will be surprised to know, तो वहाँ पार्लियामेंट और किंग की इतनी लड़ाई होती थी, रोम से वो अलग हुए. तो चार्ल्स वन की पार्लियामेंट ने गर्दन काटने की ऑर्डर किया, किल करो इसको. एंड चार्ल्स वाज किल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट. सो दे हैव रियली सैक्रिफाइस्ड. दिस इज हाउ दे ब्रॉट द कन्वेंशंस एंड ऑल दोस ट्रेडिशंस वी आर फॉलोइंग नाउ. ये जितने भी आईएएस वगैरह आप देख रहे हैं, आईएएस आईपीएस, ये सब अंग्रेजों ने तो वो हमको दिया सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का.
इंग्लैंड के टाइम पे क्या था जो उन्होंने दिया हमको बाय डिफॉल्ट? उन्होंने तो अपने फायदे के लिए किया, रूल करने के लिए, बट सिस्टम तो कुछ लाए वो, तो उससे पूरा इंडिया एक हो गया। तो उन्होंने जो एग्जाम शुरू किया था दैट वाज कॉल्ड एज ICS, इंडियन सिविल सर्विस, which now became IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एंड यू नो IAS वाले क्या करते हैं, आपको दिख नहीं रहा कि आजकल देखना पड़ता है कि आपको शर्म आती है। IAS में कोई जाना चाहता है ना, मैं कहता हूँ डूब मरो। कोई भी MP आके MLA आके तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दे आर ह्यूमिलेटेड, दे आर अब्यूज्ड, बट बिकॉज लोग, गरीब लोगों के पास पावर, उनको दिखाने के लिए बड़े बड़े बंगलोज, करोड़ों अरबों, और जो वो लिखेंगे वो होगा, और पॉलिटिशियन के साथ उनका नेक्सस हो गया। तो बाय डिफॉल्ट अगर आज इंडिया एक कंट्री है, बाय डिफॉल्ट है, और वो भी नोशन है, इमेजिनरी है, एक इल्यूजन है। इंडिया रियल में कंट्री है ही नहीं, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ जातियाँ हैं, किसी भी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए अल्टीमेटली आर्मी आती है फिर पावर, जब लोगों में रिवोल्ट हो जाता है। रशिया में भी तो पुतिन ने ऐसे ही किया था। येल्सिन ने जब आर्मी की छोटी सी यूनिट भेजी, वो शराब पी के येल्सिन भेजता था, तो उस छोटी आर्मी यूनिट ने रशिया की पार्लियामेंट के ऊपर गोले चलाए थे। मैं आपको भी लिंक भेज देता हूँ, देखो क्या हुआ था। जब 300-400 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मर गए, सब कुछ मर गए, अब पुतिन उसका बच्चा देखो कैसे, और वही अब हमारे यहाँ बनना चाहते हैं, वही सेम दूसरे पुतिन के रास्ते चलना चाह रहे हैं वो, या वो इजराइल में तो कहाँ कहाँ तक समझाऊं मैं आपको। और सबसे बड़ा मैं आज आपको खतरे की बात बता रहा हूँ, बस वो कह के मैं बंद करूँगा, 11 मिनट 44 सेकेंड हो रहे हैं। हमारी आर्मी भी तो जब लड़ेगी, वो भी तो जातियों के हिसाब से लड़ेगी। सिविल वॉर में अंग्रेज़ों ने कमाल किया कि हमारी आर्मी को भी उन्होंने जातियों से बना दिया। डोगरा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या बना दिए हैं, वो गुरखा रेजिमेंट, और राजपूतों के लिए राजपूताना राइफल, वो और सिख वो चल पड़े। सिखों ने रिवोल्ट किया था 84 में, इंदिरा के बाद वो चल पड़े थे। और मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि हमारी आर्मी को ये सिविल IAS ने कैसे कंट्रोल में रखा है। और सबसे मुझे अभी भी जो डर लगता है, उस डर से मैं कह के बंद करूंगा आज का। मैं थोड़ा ही, प्लीज़ मेरे को माफ़ करो, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी जो बहुत खतरा हो जाएगा हमारे देश के लिए। कि आज भी हमारे पास जो 175 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उसका बटन किसके पास है? वो मेन कव्वाल जो सारी कव्वालियाँ गाता है और पीछे सारे तालियाँ बजाते हैं, वो न्यूक्लियर बटन उसके हाथ में है। कोई सेफ्टी वर्जन है उस न्यूक्लियर की? मैं आपको जब डिटेल बताऊंगा, उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हम कितने बड़े खतरे से गुजर रहे हैं। ये जो 240 का उसको हमारे लोगों ने धक्का दिया है, वो कुछ भी कर सकता है। न्यूक्लियर बटन उसके हाथ में है। किसी भी कंट्री को कभी भी कुछ भी वो कर सकता है। सो मैं अभी आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, आपको बता दिया है कि इंडिया एज ए कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट बना है। यह बना था शुरू में जब अशोका ने बनाया था, जिस पे आज हमारा एम्ब्लम है, अशोका द ग्रेट। तभी 2 ग्रेट हुए हैं सिर्फ। मैं कई बार हिस्ट्री में कहता हूँ 2 ही ग्रेट हुए हैं, अब तीसरा ग्रेट शायद मैं बनूंगा। एक था अशोका द ग्रेट। दूसरा, अशोका ने तो हिंदुज़म छोड़ दिया था, वो तो बुद्ध धर्म करके उसने फिर बुद्ध धर्म को वो किया था कलिंगा वॉर के बाद। दूसरा फिर मुगल पीरियड में अकबर बना, जिसने दीनी हिलाई चलाया अपना, वो भी बहुत रिस्पेक्ट। उसकी वाइफ हिंदू थी। मैं अब आपको हैरानी की बात बताऊं, अकबर जो था वो मुसलमान, हिंदू मुसलमान कोई था ही नहीं उस टाइम। अकबर की पूरी फौज का कमांडर कौन था? हिंदू था, राजा मान सिंह। और इस तरह वो लड़ने गया था हल्दी घाटी से राणा प्रताप का, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राणा प्रताप का कमांडर कौन था? मुस्लिम था। कोई हिंदू मुस्लिम नाम की चीज थी नहीं। वो जगह की, झंडे की, कि मेरे नीचे तुम आ जाओ। समझ में आ रही है आपको ये बात? ये जो नए ढंग से हमारे को कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत गलतियां हुई, 70 साल गलतियां हुई, मगर चीज़ें अच्छी भी तो हुई हैं। हमें अच्छी चीज़ों की तरफ भी देखना है, वो बताऊंगा। बट अभी भी जो जातियों का, मैं जिस जगह रह रहा हूँ, मैं आपको बताएं, सांस लेना मेरे को दूभर हो जाता है। नाम मेरा बाद में पूछा जाता है सबसे पहले, कौन सी जाति? मैं गुस्से में कहता हूँ क्रिश्चियन बन गया हूँ। तो फिर वो लेडी पूछती हैं अपनी लोकल गांव की भाषा में, क्या तुम ब्राह्मण क्रिश्चियन हो या खत्री क्रिश्चियन हो, अरोड़ा क्रिश्चियन हो, कौन से? मैं कहता हूँ उसमें नहीं होते, जातियाँ नहीं होती, क्योंकि जातियों का खून हमारे बोन मैरो के अंदर जा चुका है। मैं छोटे से गांव में देखता हूँ, मैं जिस जगह रह रहा हूँ ये जाटों का मोहल्ला है, 2 गली छोड़ के वो गुजरों का मोहल्ला है, थोड़ा आगे जाओ पंडितों का मोहल्ला है,
फिर जिस जगह मैं रह के आया हूँ 4 गली छोड़ के, वो जाटवों का मोहल्ला है, जाटव हैं उसमें सारे। और जाटव के सामने गुजर रहता तो गुजर मुझे दूसरे दिन ही आके ले गया कि तुम क्यों जाटव के घर में क्यों बैठे हो, क्यों खा वो करते हो। सिर पकड़ लेता हूँ सर, मैं सिर पकड़ लेता हूँ। तो हम जो मैंने कोई गलत नहीं चुना। वी द पीपल ऑफ इंडिया नहीं है, वी द इडियट्स ऑफ इंडिया। दैट्स वाई मैंने अपने चैनल का नाम क्या रखा है, वी आर इडियट्स। और हम सुधरे नहीं हैं, अभी हम सुधरे नहीं हैं। हम भूल जाते हैं कि न्यूक्लियर बटन किसके हाथ में है, और वो बटन दबाएगा तो 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? आगे बताऊंगा अभी इसी का एपिसोड 3 का पार्ट 2, 3 आई विल डू इट। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एक्सक्यूज मी इफ आई एम बीइंग लाइक दिस। अब मैं उठ के थोड़ा सा देखता हूँ, काम करता हूँ। बारिश हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो गई है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर इसको अपलोड करूँगा, फिर आपको जल्दी से जल्दी फेसबुक पे डाल दूँगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।